So everybody is, are you guys actually doing with me or not? You should put on your computers and you should be telling me everything, right? Okay. The portfolio website we build after this. First, let us do some little practice about making some cards and some pictures and all about the Flexbox. Little practice. Then we move on to the portfolio. But you should be telling me each and everything. Do you understand? Okay. So you do with me and tell me what I should do. And where is that? VS Code is here. So I created a project here with the day 45. So I'm gonna create two files, index.html. Okay, like we created all the time. Okay, why is it not creating it? सर आपने फोल्डर बनाया. Oh, I created a folder. It's a folder. Damn. Okay, simply just go and delete it. Move to trash. Okay, new file, call it index.html and put emmet there. Called it flex muscles, maybe muscles, you know, and put them on index, say call it style.css. Okay, and in index dot link this style. Okay, we're gonna link it link colon css, linking it up. So the first thing we will do in the index.html is here I will have one container. Okay, I want to have some pictures and just lay out them as a picture website, which we later on we move on as a movie app, for example, we will do later on. That will be later. So just a little bit of we understand the flex and how we I want to see that how you guys actually arrange the items on the page using Flexbox. So write dot container. Okay, I got a container here. This is the overall box I have. Okay, the container, and in the container I got one card, say dot card. So I got the container outside and inside I got the one card. I may have multiple such cards which I will then copy paste, and in this I will have firstly the image tag. I will have an image tag. Okay, and its source I will get image from the unsplash.com. So what shall I write? Shabash, tell me. https:// हाँ क्या लिखते हैं फिर? हाँ जी, to get the image from वेबसाइट का नाम है unsplash.com. no source dot प्रॉपर बताओ unsplash ये भूलने की नहीं है ना unsplash.com then then we want to have the dimensions 1600 into say 1000 for example. Let's say 1000 and slash then question mark, maybe I say Kashmir. कहीं से आवाज आ रही है गंदी वाली. Okay, alt, so Kashmir, this is the to get any picture which belongs to Kashmir, and dimensions are these things automatically from the unsplash.com and load it here. So alternate text will be the Kashmir, and then we need to have some maybe the class for this. I want to have a class for this guy, and the class I will call it maybe this is the under the card I say card img. Okay, always when you give the name, give the two names. And in css the best practice is give not camel casing like this, like we do in the programming, like this camel casing. Don't do the camel casing. The default or conventional way of doing things is like putting up the hyphen, because in the bootstrap later on it will help us to name things. Okay, name like these card. सर आप मल्टीप्लाई आइकन कहाँ से लाते हैं यहाँ पे डायमेंशंस के वक्त? सिर्फ x ये x है? x okay. 16 into 1000 Kashmir, alt Kashmir, and class is card image. Right, you're very good, Rasiba, do with me. Okay, I have this in a card and I have maybe some h3 tag. In h3 tag I say Kashmir beauty maybe, or something like whatever you like to call it.
and I got one paragraph tag P, say P tag, and in this put some lorem and write 10. Lorem 10 means give me 10 words. Just give me the 10 words only. This command S. So right now if I give it a go live, and I'm having technically a very big picture, okay, and in the bottom I have the Kashmir beauty, and I got this thing, and I may have maybe hundreds of such cards which I want to place it beautifully on my page using the Flexbox. Okay, okay. Now it's time to give what to put up the CSS for this. Then later on we will have such cards all over the place. Okay. Now what will we do? What will you do when you go to style? The first thing first, that is to catch every element. And what do you do in that? In every element, what do you do, Shabash? What do you do mainly? We do mainly 4 things actually. That is the padding, the margins, Padding, the box margins, model, font size, and Mod- the font actually borders. family. Later on we will see the font families. Right now I say padding is what? Padding is 0, margin is 0, okay, and then box sizing. जो हम इसके बाद जो हम करेंगे ना बेसिकली पोर्टफोलियो, उसमें आपकी सारी प्रैक्टिस होने वाली. सो डोंट मिस दोज क्लासेस. इट मे टेक द होल वीक, द नेक्स्ट कमिंग वीक, बट दैट शुड बी अ वेरी गुड वेबसाइट. सो पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग. व्हाट आई डू बॉक्स साइजिंग? जल्दी बताओ. बॉर्डर बॉक्स. यार Borders. जल्दी बताओ. ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस है, ये आपको बोलना है. इट्स एग्जाम टाइम. अब इसमें हमारा कंटेनर था जो आउटर कंटेनर है, ठीक है ना. Let us put the container to hog all the space. I say dot container because it's a class name. It's a dot container, and I say width. इसकी width कितनी रखूँगा मैं? शाबाश, पूरा लेना है मुझे. 100. 100%. 100 VH. Should I say VH or VW? VH. No, it's VW. width. It's width. Width. Height 100 VH. 100 VH. Okay. इन जो छोटे प्रोजेक्ट्स 1-2 कर रहे हैं इसमें मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन हम जो पोर्टफोलियो करेंगे उसमें सारी चीज़ें लगाएंगे. यहाँ मैं सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा. विड्थ 100 यूरो, हाइट 100 VH. डिस्प्ले क्या होने वाला है इसका? कंटेनर का डिस्प्ले हैज़ टू बी फ्लैक्स, है ना. डिस्प्ले तो फ्लैक्स ही लगाऊंगा मैं. इसका ये जो कंटेनर, अभी कंटेनर में तो आएगा नहीं इमेज बहुत बड़ी है, इसको छोटी करना पड़ेगा ना, तब जाके मुझे इमेज इसमें आएगी. फिलहाल मैं कंटेनर की बात कर रहा हूँ कि डिस्प्ले उसका फ्लैक्स है. और क्या करेंगे? फ्लैक्स डायरेक्शन क्या रखेंगे हम? रो. हालांकि वो है ही रो, लेकिन हमें रखना चाहिए. ओके, और बताओ. सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, है ना, ताकि बीच में आ जाएं चीज़ें. ठीक है. अभी तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगी क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर है, तो ये पूरा ही स्पेस पकड़ रही है. पिक्चर को छोटी करेंगे तो फिर आ जाएगा. बाकी चीज़ें इसमें करेंगे वो बाद में करेंगे. पहले बताओ मुझे कार्ड. पहले हम, मेरा ख्याल है, इमेज को ही छोटा करेंगे. जो मेरी इमेज है, इमेज का नाम कुछ रखा हमने, कार्ड इमेज डॉट कार्ड इमेज IMG. बताओ कार्ड इमेज की विड्थ कितनी रखेंगे हम इसकी? 100% रखते थे ना हम. 100%. क्यों 100%? बिकॉज इट विल टेक द जितना इसका पेरेंट होगा उतने हिसाब से, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट अगर आप देखोगे, इसका पेरेंट है कार्ड, ये ड्यू. ठीक है. अगर मेरा जो कार्ड है मैं पकड़ूंगा डॉट कार्ड, ओके, और उसका मैं विड्थ दूंगा कुछ, फॉर एग्जांपल जितनी मुझे चाहिए विड्थ. फॉर एग्जांपल मैं इसको विड्थ दूंगा, मानो इसकी विड्थ देंगे हम फॉर एग्जांपल 260 पिक्सल्स. ठीक है. अब अगर मैं 100% कह रहा हूँ, सो जितना कार्ड है उतनी ही उसका 100% लेगा ये, बिकॉज इमेज किसके अंदर है? कार्ड के अंदर. सो कार्ड का जो, क्योंकि ये इमेज जो है ये खुद किसके अंदर है? ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें इस कार्ड के अंदर है ना. ये जो कार्ड है कार्ड के अंदर है. बात समझ आई? यानी कि एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करेंगे हम. नहीं तो भागे गया, वो कहाँ गया? VS कोड. जो हमारा, जो मैं कह रहा हूँ, अच्छा ये लगा, ये नहीं है,
1 सेकेंड, ये कहाँ से है? राइटिंग पैड लगानी है इसमें, राइटिंग पैड लगाते हैं। ओके, ये देखिए आप, जो आपका कंटेनर है ये यहाँ से यहाँ तक आपका कंटेनर है ना। इसके अंदर एक आपकी चीज़ है, पहले कंटेनर सारा ही है, ठीक है। कंटेनर के अंदर फिर आपका कार्ड है, कार्ड यहाँ से यहाँ तक है, और कार्ड के अंदर आपकी एक तो ये इमेज आ रही है, नंबर 1 आइटम, और दूसरा आपका हेडर आ रहा है, ठीक है, और तीसरा आपका ये पैराग्राफ आ रहा है। यानी कि जो कार्ड आपका है, जो कार्ड का बॉक्स होगा उसमें एक तो इमेज आएगी, है ना, और एक तो हेडर आएगा और एक पैराग्राफ आएगा, ये 3 चीज़। और मैं चाहता हूँ ये ऐसे कार्ड बने और इसके अंदर ये पिक्चर यहाँ पे फिट हो और फिर H3 आए और ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या काम किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने कहा कि जो कार्ड कंटेनर है, कंटेनर पहले मैं कंटेनर में मैंने फुल रखा, फुल स्क्रीन, ठीक है। कंटेनर मैंने रखा फुल स्क्रीन, 100 व्यू पोर्ट, जितना भी मेरा व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है, उतना ले लो। और उसको खुद रखा फ्लैक्स, यानी कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं या कार्ड है उसके अंदर तो कार्ड है, तो वो कार्ड आ जाएगा, क्योंकि मैं मल्टीपल कार्ड रखने वाला हूँ। क्योंकि जो कार्ड है इसका चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड इसका एक ही है, वो है कार्ड कंटेनर का। तो ये कार्ड के ऊपर अप्लाई करेगा अपनी चीज़ों को, और उसको इसलिए मैंने कहा कि जो कार्ड खुद है उसकी विड्थ 260 पिक्सल है, खाली विड्थ उसकी, किसकी, कार्ड की। यानी कि अगर मैं ब्राउज़र में जाऊँ, यहाँ पे देखो आप, कार्ड जो है उसने 250 पिक्सल पकड़ा और पिक्चर ने खुद को जितनी उसका पेरेंट है उसके हिसाब से एडजस्ट किया, ठीक है ना। जो उसका पेरेंट है उसके हिसाब से इसने अपने आप को एडजस्ट किया, किसने, इमेज ने। अब यहाँ पे 250 पिक्सल रखी मैंने, इसकी हाइट कुछ रखेंगे हम, से फॉर एग्जाम्पल हाइट में रखूँगा से फॉर 300 पिक्सल की। ओके, और बताओ क्या करेंगे इसमें, इसका बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस देंगे हम 20 पिक्सल्स का, ताकि वो गोल दिखे, ठीक है। ये कार्ड की बात है, अभी कार्ड दिख नहीं रहा क्योंकि उसका बॉर्डर है ही नहीं कुछ, पहले उसका बॉर्डर देंगे हम, उसका बॉर्डर देंगे हम 2 पिक्सल्स, ओके, और सॉलिड और लाइट ग्रे देंगे। अब चूंकि इसका बॉर्डर आ चुका है, ये बॉर्डर आ गया इसका पीछे, ये देखो बॉर्डर, तो इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लग गया है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करना चाहते हैं आप इसका, इसको थोड़ी सी हम पैडिंग दे सकते हैं ताकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर दिखे, लगे, है ना। इसको हम पैडिंग करेंगे काम, पैडिंग, इसकी पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल दे दो, ठीक है। यानी कि इसके यहाँ से भी 20, यहाँ से 20, यहाँ से भी 20, नीचे से भी 20 पिक्सल आ गया, तो पिक्चर बीच में आ गई। और आप देखो ये पिक्चर का भी होना चाहिए बॉर्डर रेडियस वही 20 पिक्सल, ताकि वो गोलाई उसकी ले ले। तो हम कार्ड की भी बॉर्डर रेडियस करेंगे कितना, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, ओके। अब इसका भी, ये भी गोल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करेंगे, इसका पैडिंग हमने किया, इसको पैडिंग दे दी, इसको किसको दी हमने, कार्ड को पैडिंग दे दी इसकी। और बताओ क्या करेंगे इसका, इसको ऊपर ये लग रहा है ना उसके साथ, तो इसको मार्जिन देंगे हम चारों तरफ से मार्जिन देंगे। सो हम या तो मार्जिन टॉप बॉटम दे सकते हैं, लेकिन हम चारों से मार्जिन देंगे 20 पिक्सल का फॉर एग्जांपल, ताकि ये थोड़ा सा नीचे आए, तो हर तरफ से ये नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया है, ओके। और बताओ क्या करेंगे हम, इसको हम बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं, लेट अस गिव द बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो मैं दूंगा इसको 5 पिक्सल चारों तरफ से, 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल चारों तरफ से नहीं है, इसका मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या होता है, कितना ब्लर कितना है और कितना फैलेगा एक्स और वाई में, और फिर ब्लर कितना है और कलर कौन सा आप देना चाहते हो। मैं कहूँगा लाइट ग्रीन फॉर एग्जांपल चाहिए मेरे को, ठीक है। तो इसकी बॉक्स शैडो लाइट ग्रीन आ गई अब पीछे से एक्स और वाई डायरेक्शन में, और कितना बढ़ेगा और ब्लर कितना होगा और कितना खींचेगा, वो डिपेंड करता है इन साइज़ के ऊपर, ठीक है। हाँ, और इसमें मैं थोड़ी सी फिर एनिमेशन करना चाहूँगा कि मैं कहूँगा कि भाई साहब जब कार्ड पे हॉवर करेंगे तो इसका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एनिमेट होना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसकी ट्रांजिशन कहूँगा, इसलिए उसकी ट्रांजिशन के लिए मैं कहूँगा कि भाई साहब आप लगाना 0.7 सेकेंड्स, ठीक है। वो देखेंगे, एडजस्ट करेंगे फिर, एंड ईज़ इन आउट करना, ठीक है, ओके।
जब वो करेंगे हम। पहले कार्ड इमेज के बारे में और बताओ, कार्ड इमेज के बारे में और क्या कह सकते हैं हम। विड्थ इसकी 100% है और हाइट इसकी अगर दोगे आप वैसे खुद ही लेगा हाइट उसके हिसाब से, तो वरना आप दे भी सकते हो कि हाइट अगर कुछ चाहिए आपको, जैसे हाइट आप ले लो इसका सिर्फ 80% ऑफ द whatever द साइज इज़, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, 70% लेते हैं, ओके। तो ले रहे हैं, ओके। और इसकी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, और क्या लोगे आप इसका, इसको भी बॉक्स शेडो दे दो, क्या बोल रहे हो, इसको भी बॉक्स शेडो देते हैं। मैं यहाँ से ही कॉपी करता हूँ, ये कमांड C एंड कमांड V सेम ही रखते हैं फ़िलहाल, ताकि इसका भी बॉक्स शेडो आ जाए, पिक्चर का भी वो मैच हो जाए उसके साथ, ठीक है। अब और कार्ड के हॉवर पे हम काम करेंगे, डॉट कार्ड कोलन हॉवर। जो ही इस पे हॉवर होगा तो उस वक्त मुझे कुछ करना है, एक तो इसका हल्का सा ही बड़ा होना चाहिए और इसकी शैडो भी चेंज होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो बॉक्स शैडो है, ये जो मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे कमांड C एंड कमांड V, मैं चाहता हूँ ये लाइट ग्रीन से कुछ अलग कलर दे, लाइट में भी रेड, लाइट ग्रे हो जाए या लाइट ब्लू हो जाए, स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू हो जाए। और थोड़ा सा इसको ये थोड़ा स्केल अप करे, तो स्केल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, ट्रांसफॉर्म, वेरी गुड, माशाल्लाह। स्केल से 1.2, थोड़ा सा हल्का बड़ा हो जाए जब इसके ऊपर हॉवर करेंगे हम, यानी कि जब इसके ऊपर हॉवर होगा तो कुछ हो नहीं हो रहा है, ठीक है। एक तो ब्लू इसकी ये पीछे देखो ब्लू हो गया इसका, ये जो ग्रीन था वो लाइट ब्लू हो गया, स्काई ब्लू। और क्या हुआ कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब फ्लेक्स बॉक्स का काम कहाँ पे आ जाएगा, जब मेरे पास ये कार्ड बहुत सारे होंगे। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं ये कार्ड जो मेरे पास है, ये कार्ड मेरे कंटेनर में है, मैं कहूँगा मैं सारा ये कार्ड करूँगा कॉपी, कंट्रोल ऑप्शन डाउन एरो, और मैं ये 10-15 डाल रहा हूँ, ठीक है, डाले मैंने। अब चूंकि ये फ्लेक्स बॉक्स है तो इसने क्या किया, इनको ये स्क्यूज़ कर रहा है, जितना इसको हो गया, जितना इसको हो सका उतना इसने स्क्यूज़ किया, ठीक है। मैं लास्ट वाला ही काट ही देता हूँ, क्योंकि आपने इसको बनाया है द फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स बॉक्स इज ट्राइंग टू स्क्यूज इट डाउन, सो इट डजंट लुक गुड एट ऑल। सो इसलिए हम पहले क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जो स्टाइल है, यहाँ पे ऊपर जो कंटेनर है उसको हम व्रैप, क्योंकि इसका नो व्रैप है, क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो जल्दी बताओ। मैं चाहता हूँ ये व्रैप हो, ये स्क्यूज ना हो, बल्कि नेक्स्ट इसमें आए, हाँ, फ्लेक्स व्रैप, क्योंकि ये डिफॉल्ट क्या होता है, नो व्रैप, एंड आई वांट इट टू व्रैप, सो आई वांट इट टू व्रैप। नाउ यू सी दे आर गोइंग इनटू द डिफरेंट, नाउ इसने स्पेस अपनी पकड़ी, ये काम कर रहा है अपने ठीक से, ठीक है, और ये बड़ा भी हो रहा है और अपना चेंज कर रहा है वो, बट इट इज़ गोइंग टू द नेक्स्ट, नाउ इट्स गोइंग टू द नेक्स्ट रो, क्योंकि ये व्रैप से हो गया, क्योंकि अब ये स्क्यूज नहीं करेगा, ये नीचे नीचे जाएगा, है ना, ठीक है। बात समझ आ रही है, इज दैट ओके, गेटिंग। सो फ्लेक्स व्रैप से हो गया कि ये आ गया नीचे, ठीक है। और बताओ इसमें कुछ और कर सकते हैं हम, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा हमें ये काइंड ऑफ एन मतलब डिफरेंट कार्ड्स बन गए हमारे, पिक्चर कार्ड्स। अब मैंने इसमें अगर मैं इसको बना के मुझे कुछ आर्टिकल टाइप, डिफरेंट आर्टिकल्स, एक इस पे क्लिक पे फिर आर्टिकल भी खुल सकता है, मतलब एग्जैक्टली ये इसमें बेसिकली मेहनत कम है और काम ज्यादा हो सकता है। ये ब्यूटीफुल, मतलब ये कि यू आर सेइंग कि अगर इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये पहलगाम की साइड पे ले जाएगा हमें, डिफरेंट आर्टिकल, मतलब हाँ डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल्स है, क्लिक किया फिर फर्दर आगे जाएगा। एग्जैक्टली मतलब फॉर एग्जांपल हमारे मल्टीपल पेजेस हैं और ये हमारा एक सेक्शन रहेगा, मतलब ये रोज में 100 पेज के रोज एक सेक्शन, यथ मज फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोकेशन, अगर टूर साइट बना मैंने, नाउ दिस टूर साइट में ये चीज़ जो होगी, ये फुल पेज तो होगी नहीं, ये होगी हमारे ऐसे कि या ऐसे ऐसे तथ मज ऐसे अख सेक्शन,
यह मज ऐसे आसान यम carousel type cards about different pictures ठीक है तथ मज वन यह पहलगाम वन ये अगर maybe we will have later on we'll do like this वन नोट का ड्रा कहाँ है ड्रा क्या अस गुड बाज़ाब्त पन पेज यह हेडर तथ मज मेनू सिस्टम कित लोगोज मेनू सिस्टम पता कि सेंटरस मज कुस कुस प्लेसेस हेको गसित तथ मज पहलगाम गुलमर्ग एंड सो ऑन तमिच पिक्चर थोड़ा बहुत तमिच यह then when you click it it will take us to the full page of the Gulmarg. Do you understand? So it will be just one part, one section of my web page, and then there will be other stuff here, advertisements and all. Then on the last we will have a footer. सर अगर लो And रिम ज्यादा contacts. हुआ तो वो कैसे उसमें फिक्स हो जाएगा? क्या बोल रहे हैं आप फिर से बोलिए? लो रिम जैसे ज्यादा है मेरे में, मैंने 2x लो रिम कर दिया था। मैंने क्या किया था? लो रिम है ना? लो रिम? हाँ अच्छा लो रिम आपने टेक्स्ट ज्यादा लिखा? हाँ जी। तो उसमें आप वो जाएगा ना नीचे, तो ओवरफ्लो आप क्या करोगे काम? स्क्रॉल। तो ओवरफ्लो या तो स्क्रॉल करो या तो हिडन करो, यानी कि आपने लो रम रखा है बहुत ज़्यादा, सुधराना है नेवर, उसको ना ओवरफ्लो। तो मैंने समझाया था ना आपको, यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल इसमें जो पहला वाला कार्ड है मैं थो लोरम बुलाया लोग ब्या लोरम पे गो ये ना डिफरेंट ना कार्ड नेवर ना कार्ड नेवर दैट मीन्स ओवरफ्लो। ओवरफ्लो विज क्या करान को दैट मीन्स जिसमें कार्ड जो मेरा कार्ड है उसका या तो मैं ओवरफ्लो रखूँगा, माइक बंद करो प्लीज़, या तो मैं उसका ओवरफ्लो रखूँगा हिडन। क्या रखूँगा? हिडन, मतलब गो ये हाइड वन अथ में बाकी, या करस बह कम या करस बह स्क्रॉल, यह थो बंद अथ कदम आवाज़ स्क्रॉल, या करस बह स्क्रॉल, क्या करस बह तेल यी मे सो अथ यपर कन सो बाकी कसखानी समझ यह चे वारिया टेक्स्ट कर लिखुत ऐ सो यी तेल अथ, मगर यह बेसिकली कार्ड, कार्डस मज लिखान दंदर लिखो ये अख लर्न बस, पे यपर क्लिक करो ना यह इट विल टेक अस टू द गुलमर्ग साइट, अगर ये गुलमर्ग या क्या and then there will be tons of things not here, but eventually if you want to do it it will be like this, then you have to do like this, right? Getting? Okay जी sir. Now I will say new file here, call it b.html. सर मुझे इसमें ना सर हाँ जी बोलिए सर, मुझे 2 रोज में ना डिस्टेंस ज्यादा आई है, इसको कैसे कम करेंगे? 2 रोज में मतलब सर एक समय भेजता हूँ मैं। नहीं आप ऐसे ही बताओ जैसे मैंने ये बनाया यहाँ पे, मतलब आप इसके बारे में बता रहे हो? हाँ। मतलब जो ये नहीं इनके ना बॉटम इन दोनों 2 रोज बन गए ना यहाँ पे। हाँ मुझे इसमें डिस्टेंस इनमें बीच में बहुत ज्यादा, हाँ ये वाला जो बीच में डिस्टेंस है, सर जो बीच में आपकी डिस्टेंस है, आपने कहाँ पे किया होगा गड़बड़? जो मेरा गैप तो हमने रखी नहीं, गैप से ये दूर हो जाएंगे ना, आपने मार्जिन ज़्यादा दिया होगा। मार्जिन आपने बहुत ज़्यादा दिया होगा। मार्जिन कहाँ पे हमने है? जो हमने कार्ड का मार्जिन दिया ना यहाँ पे, ये मार्जिन जो कार्ड का मैंने कम भी किया, लेकिन ये इसकी डिस्टेंस कम नहीं हो रही है। नहीं ये तो मार्जिन ही है, क्योंकि अगर मैं मार्जिन हटाऊंगा इसका फॉर एग्जांपल तो ये चिपकेंगे ना आपस में, मार्जिन मत हमें की है नहीं सर नहीं, जो है ना ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाला रो और बॉटम वाला रो जो है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। जो ऊपर वाला रो, ये मैं समझा नहीं, जो ये रो है और जो ये रो है ना, हाँ जो जहाँ पे आपका कर्सर है ना सर, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा होगी। आपने पैडिंग 0 मार्जिन 0 किया पहले? हाँ पैडिंग 0 मार्जिन 0 आपने किया, क्योंकि इसका अपना रहता है ना बिल्कुल सर, पैडिंग एंड मार्जिन्स लिंक है आपका? वो मैंने 0 रखा है सर। हाँ आपने वो 0 रखा, ठीक। मार्जिन क्या दिया आपने यहाँ पे कार्ड का? मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल रखा है और पैडिंग भी 20 पिक्सल रखी है। नहीं पैडिंग तो अंदर से काम करेगी, पैडिंग करेगी अंदर से। मार्जिन भी 20 पिक्सल है। मार्जिन थोड़ा कम कर दो, मगर अगर मैं अगर इसको पूरा भी बंद कर देता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम पूरा कर रहे हैं काम
तो फिर ये इसका ये ले रहा है फिर भी, है ना? हाँ इसकी ये जो डिस्टेंस है ना बिटवीन दिस एंड दिस रो, ये फिर भी आ रही है ना? हाँ हम्म हाँ सर। क्योंकि मार्जिन इसने किया वहाँ से कम, लेकिन ये वाला मार्जिन इसने कम नहीं किया, जो एक रो और दूसरे रो में फिर रैप हो रहा है ना। यस सर। हाँ आई गॉट इट। इसकी एक प्रॉपर्टी आती है जो मेरी दिमाग में नहीं आ रही अभी। इसको हम बोलते हैं कि जब ये जाएगा ना दूसरे रो में रैप करके, सो हाँ ये जो वाली डिस्टेंस है जो बीच में है, ये वाली, ये इसको हाँ अगर हमें ख़त्म करनी होगी, फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, जिससे कि ये हमें ये ख़त्म होगा। स्केल आप बंद करो एक मिनट। जो हमने किया ना स्केल, इसका ट्रांसफॉर्म स्केल, हाँ इसका एक मिनट पावर में। हावर में स्केल नहीं करेंगे हम। नहीं उससे भी नहीं हो रहा है। नहीं मैं देख रहा था कि कितना डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस ये रख रहा है ना खुद ही। अब अगर मैं मार्जिन्स ख़त्म करता हूँ, ओके, नहीं डिस्टेंस फिर भी है ना, ये डिस्टेंस फिर भी है। हाँ सर इसको डिस्टेंस फिर भी रहती है। इसको इसके ऊपर देखेंगे। हाँ, दिस इज़ नॉट इन राइट नाउ इन माई ब्रेन, बट नाउ दिस इज़ अ प्रॉपर्टी अबाउट wrapping, कि wrap के बाद जो दूसरा रो गया, if it is adjusted in a second row, how to minimize this gap, huh? We will see that, we'll come back to this later. This is a very good question what he is saying, क्योंकि जो ये जो वाली जो गैप रख रहा है ये खुद रख रहा है ना, ये गैप, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा गैप, जो गैप आती है वो कौन सी आती हैं? गैप मीन्स द वर्टिकल गैप, है ना। इफ़ आई से रो गैप, दिस इज़ अ रो गैप। अगर मैं रो गैप करूँगा कम, मतलब 2 पिक्सल रखूँगा मैं रो गैप, ठीक है। एक मिनट, मार्जिन बंद करेंगे पहले। दिस इज़ द रो गैप, लेकिन मुझे कॉलम गैप चाहिए। अब क्या चाहिए, क्योंकि कॉलम में गया ना। इज़ देयर एनी, डू वी हैव अ कॉलम गैप प्रॉपर्टी? रो गैप तो मेरे पास है, बट डू वी हैव अ कॉलम गैप? यस यस। कॉलम गैप, कॉलम गैप आप दे दो 1 पिक्सल। स्टिल नॉट मिनिमाइजिंग इट, राइट? क्योंकि कॉलम गैप तो तब होगा जब हमारा डायरेक्शन होगा वो कौन, जब हमारा डायरेक्शन होगा हाँ, कॉलम गैप तो तब देगा ना जब हमारा डायरेक्शन होगा कॉलम। हमारा तो कॉलम गैप भी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास रो एज अ फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ठीक है। वी विल कम बैक टू इट टुमारो, ओके। लेट मी सी इट। It's not I'm not clicking this thing in my brain right now. So anyways, we move on to the next thing. Make a b.html and make here new file b.css. Okay, in b.html now I want to make a simple card. Before I go to the profile profile making, I want to make a simple card where I will have this structure. See what I will have. I want to have this structure that I have the image, जो अभी जैसे image बनाया हमने image, and I will have little bit of text and all whatever I have. Then I will have a picture here, okay, the profile picture, okay, and I have the name, and I have the email ID, and I have the 3 dots which we will do later on, work with them using the JavaScript. But I just want to have just 3 dots, the vertical dots only. Now clicking these vertical dots and showing up 3 things, and drop down isko niklega and all that properties and all, we will do that in the JavaScript, not here. I just want 3 dots here, and I want what? I want a card which is having a picture and my name, my email ID, and some landing picture, something, and some text about me. The simple card. And जो हमारा प्रोफाइल पेज है, प्रोफाइल वेबसाइट है, दैट इज़ अ फुल ब्लोन द प्रोफाइल पेज, जहाँ आपके स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और आप वेब डेवलपर हो, आपने क्या क्या किया आज तक, आपके लिंक्डइन जो आपका लिंक्डइन का अकाउंट है, आपके जो अदर अकाउंट्स हैं, सोशल आइकॉन्स, वो सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल कार्ड एक बनाना चाहता हूँ। इट्स अ कार्ड विच इज़ हैविंग ए पिक्चर and name and email, and then the landing, then some kind of a picture which you want to have, background picture and all, which should be actually relevant to your what you do, and also some text.
dummy text we will put on there, right? So from the basically the card, तो मेरा जो मैंने कार्ड बनाया मैं वैसे ही बनाऊंगा. पहले मैं एक कंटेनर ही बनाऊंगा यहाँ पे. हाँ, लेट्स मेक इट शिफ्ट. चलो बनाते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे. अच्छा, क्या होगा इसमें बताओ मुझे. क्या पहले क्या होगा हमारा कंटेनर, है ना. We usually have containers or wrapper classes or like that. Do you understand what I'm saying? So we will have a container here, right? Dot container. When I say dot container, it will create me the container, and in the container I will have two things here, right? Now this is, if you see this thing, I will have two things here. One thing is I don't need to, I can wrap this in a someone div where I have this thing and I will have actually this thing I will call as a header, which has three things in it, which will be have a picture, the name, and this. Maybe I put up them into the separate div. I put up these two guys in a separate div so that I will use the flex there also. And I will have one here div which I call header, which will put up all these things. And maybe this is the SVG image or something. This thing, this is the one thing, and this is the second thing in it. And internally from this red box I will have a picture, and I will have a name, and I will have the email, right? Okay, so that means what I should do, what I should have here in the container, I will have firstly the header. I will have firstly what? I will have a header. I should say dot header. Okay. Div class header. In the header, I will have firstly one profile, where profile has the picture and name and email. Yes. फिर इसमें सीधे हम header tag का use नहीं करेंगे? Absolutely. We can use the header tag, but I'm just concentrating on Flexbox. We'll use the header when we make our this thing. We will use proper whatever we have learned so far when we do the the profile website. You can use the header tag. We should use header tag actually, but I'm not just creating some kind of website. It's just a card, not a website. So I'm not worried about too much about this time about the semantics and all. Okay, but that's good practice. We should use the header tag, right? Okay, that's nice. Yes. So I'm having a profile. Okay, I will have that's very important. That's very good question in fact, because we will may start, if we have time. What's time? It's 10:01. If that we start that today, maybe our profile page, but you should be using whatever we have learned so far, all the semantics, everything in that. Okay, so be ready for that. It should be the big project till covering everything we have learned in these 2 months. Okay, so now we say div class header and div class profile. What will have a profile? Go. What we will have in a profile? We will have profile, some image, right? We will have in a profile image, and we will have the name and the other thing. So if I say image, then I say image img source. Again, I will get some image from the unsplash.com. I say http://https:// then what should I say? Shabash. source.unsplash.com, and I will have say 200 by 200 small picture, because I want it for my profile picture. And maybe I will use a man, and you may say women, the girls will say women, I will say man, so that you get some man picture of some man. I say profile pic. I say it's a profile picture, and give it some class. I want to give it a class as user, maybe image. Okay, user image, right? I got in the profile this thing. Okay, what else you will need in a profile also? Maybe I will have because I have two things now in the profile. I will have two more things to do. One's a name and another is the email. So I will put for that one more div. Okay, you can call it anything whatever you like. I don't want to call it anything right now. I just want to create one again I will create here one
user name. I say user name, okay, and I put up there, for example, my name, and I put up here one more, and that is my email, and I call it, for example, my email journey@live.in. So now I got a couple more divs here, right? I go in this div, I got two divs, which is having name and email, and on top of it there is a one image, and all the three things are in my this div, right? One second. This is my profile div from here to here, I guess. Yes, and in this I will have one image. I have got this image. This is the one thing I have in it, okay, one child, and second child is your this div. This is second child, and this second child has two divs inside, one for the username, one for the email, okay, and they're both contained in this outer div, which is the header, okay, which is the header. And my whole page will have actually this header, and I will have the image here and some text here, and the header will have this picture here, and name and username should come here, and these three dots should come here, right? Okay, this is how we want to proceed with this thing. Nice. Now if I give it a go right now, I need a pointer here. That's good. Okay, pointer. Okay, dispose off and go live. Now it's doing nothing. It's putting up some picture, getting some from unsplash.com, and then name and email is coming here, right? And I need also the three dots, right? I need the three dots which should come up, and three dots. For three dots, I will go here in the browser. I write bootstrap. I can get it from anywhere, just using the bootstrap icons. You can use the bootstrap icons also. This is I have shown you a couple of ways. I have shown you the font awesome, the Google icons, the Google fonts we have seen, Google the icons you can get from the font awesome and all, but we can also get from the icons from the bootstrap.com. okay, so these are the icons here in the bootstrap. I will use the icons. Click icons here. Firstly, they're here. Click the icons button, and in the icons you select here three dots, three vertical dots. Actually it says three dots. It will give us three dots. Now these three dots you copy. This copy SVG here, this SVG, as you could see here, just copy it, and we had to do nothing. We had to go back to our project, okay, and we go back to our project, and I want to go it outside this div in my profile, okay. It should be in the header, not in a profile, okay. It should be after this header. It will be here, Command V, okay. Just paste it here. That means in my header I will have a profile. In my profile I will have these guys, where I have the display picture DP, okay, and then I have the username and email. That's it in my profile. And in the header I have profile and these three dots, and they will constitute my header on the top, right? And when I'm done with the header, okay, where is the header finishes? This is the header. Where header finishes is here, and here starts my that image, okay. The image will be here, right? Where it will be above the image will be where? It will be after my header, right? You can write here image. I don't need any separate header for that. You can use separate div for that. That's the best practice, but I don't want right now. HTTP : I'm gonna go faster. And what should I write here? source.unsplash.com, then /1600 / 1000
maybe again I use the nature, some picture of the nature. I will put up there. So I say it nature as an alternate text, and I will use a class here, call it class card image, img, card image. Okay, it's the same image type. And I also have one paragraph here. Maybe after this image I will have a one paragraph which is having some lorem, maybe 20 words. Okay, 20 words of lorem, right? Now if I see it in my browser, it's looking pretty ugly. It must be looking pretty ugly because we have nothing in it. We have no CSS. We have not put up any CSS there. So it's coming, that picture is coming here and some profile picture is coming here. Now we have to style it up. Okay, now we go to the, so guys gonna waste time with it. Go inside. Now firstly we will link this, we will link here, link :css. So it will be b.css, right? We have the b.css, we want to link it with here. So now with b.css, what shall we do? Can anybody tell me? The first thing will be what? Star. Adding zero. Again the same thing. I will go from the style here and copy paste it. I don't want to waste time because Command C, because it is same thing, right? Command V. So box sizing and all. In fact जो इसमें कार्ड इमेज है ना, कार्ड इमेज वो भी तकरीबन सेम ही है. Command C and put up here Command V. Will card image have the same thing? Width 100%. I don't want a height to have anything. Let the height go. And box and border radius, it's all right. I can have that. Maybe I will add some margin later. Let me see first. Okay, it's coming up like this. I don't know what has happened to it. First of all, let us style my let us style my container, right? I say dot container. I don't want container to hog up the whole space, but I want some width of, say for example, 600 pixels. Okay, and I want it to have margin maybe all around, but I want to if I want to center without, tell me if I want to center this whole thing, I want to center this container without using the flex box. So what should I do? I can use the margin, right? You know that margin, yes, 30 pixels. And then what should I write to center it? Auto. Yeah, left and right auto, right? So what it does actually is, what it does, if I write auto, it does what? It gives you 30, it gives 30 pixel. This is your container for example, and it gives 30 pixel top and bottom. Top से 30 pixel और bottom से 30 pixel देगा ये margin, और फिर ये पकड़ेगा बीच में इसको, और यहाँ से left and right ये रखेगा equal amount. That is this auto does. It keeps left and right equal amount. So that means it gets it into the center, right? Okay. Now that's what I'm doing here. I'm getting its margins at 30 pixels and maybe auto, and I put up some padding so that my pictures and everything go away from it. So 10 pixels maybe. What else I can do? Maybe border. I want to give the border. Yeah, definitely I want to give the border, say 2 pixels. It should be 1 pixel, but let me 2 pixels. Put it 2 pixels solid, and maybe light gray, GRAY. Okay, control this, light gray. Okay, I got the light gray border. Maybe I put up some box shadow. Put up some box shadow to give that shadow. Huh? We put 5 pixel, 5 pixel, 5 pixel, and let it be light cyan. Maybe, I don't know what. Okay. Now there is some problem with it. Why is it not fitting up with that? There is some issue. Let us see. क्योंकि मैंने क्या किया, जो कंटेनर है उसकी मैंने विड्थ रखी 600 पिक्सल. अगर 600 पिक्सल मैंने कंटेनर शायद कंटेनर लिखा है, कंटेन लिखा है शायद वहाँ पर. किसमें?
हाँ जी सर, या HTML में। राइट, कमांड एस, या दैट नाउ दैट्स द प्रॉब्लम। सो कंटेनर मेरे पास आ गया, ठीक है। और इसको कंटेनर को हमें राउंड भी करना है, तो इसका जो कंटेनर का ये है ना बॉर्डर रेडियस, वी शुड गिव सम, ये नहीं है हमारा बी डॉट सी एस एस है। कंटेनर का जो हमारा ये है बॉर्डर रेडियस दूंगा मैं फॉर एग्जांपल 20 पिक्सेल्स, राइट, ओके। अब पिक्चर में कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसकी पिक्चर में फिर भी गड़बड़ आपने है। हाँ आपने 1600 पे 100 लिखा है सर हाइट नहीं दी ना आपने गाड़ी में। नहीं, आपने ये ना रेजोल्यूशन 1600 पे 100 रखा है ओ वो मसला अनसप्लाइंस है। वो मसला है 1600 बाई बी डॉट एच टी एम एल। हाँ 200 है। नहीं, ये तो हो गया प्रोफाइल पिक्चर, अच्छा हाँ, इसमें जो ये वाली है ना 1000, हाँ इसलिए ये मसला है ना। अब आ रही हैं, ठीक है। अब इसको हमें फ्लेक्स बॉक्स, मुझे बता कैसे करूँगा मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स के हिसाब से, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसका फ्लेक्स बॉक्स के, भाई माइक बंद करो, इसमें इको आ रहा है ना। पहले आप समझो, जो इंडेक्स आपका है, सॉरी बी डॉट एच टी एम एल जो आपका है, देखिए उसमें आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो पहले कैसे है, और फिर मुझे बताओ कि मैं फ्लेक्स बॉक्स किसको लगाऊंगा, ये मुझे आपको बताना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका हेडर है, हेडर के अंदर आपको, माइक बंद यार, पता नहीं क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, ये हेडर आपका है। और हेडर में देखो 3 चीज़ें हैं, एक तो ये पिक्चर है और ये 2 नाम है, ये 2 नाम खुद एक डिव के अंदर है, ठीक है। और ये SVG वो 3 डॉट्स आ गए, और ये पिक्चर है प्रोफाइल पिक्चर, और इनको हमने डॉट प्रोफाइल में रखा था। डॉट प्रोफाइल जो मेरा है उसमें एक तो पिक्चर गोल आनी चाहिए, और ये जो 2 चीज़ें हैं डिव में जो बैठे हैं वो अलग 2 डिव एक डिव में बैठे हैं जिसमें नाम और ये है, और वो यहाँ आने चाहिए, और 3 डॉट्स यहाँ आने चाहिए। तो लेकिन पहले अगर मैं ये हेडर देखूंगा, अगर मैं हेडर देखूंगा उसमें एक तो मेरे पास प्रोफाइल है, ओके, खाली प्रोफाइल मेरे पास है उसमें, है ना। हेडर में तो मेरे पास एक प्रोफाइल है, और क्या है अलग से, तो अगर आप अलग से आप देखोगे इसमें बी HTML जो हेडर मेरा है, ये मेरा हेडर है यहाँ से नीचे तक कहाँ तक, यहाँ तक पहले इसमें प्रोफाइल है, यहाँ से यहाँ तक प्रोफाइल, ये हो गया एक आइटम इसके अंदर हेडर के अंदर, और फिर एक इमेज आ रही है SVG वाली यहाँ तक, और कुल मिला के मेरा हेडर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे। तो 2 चीज़ें मेरे पास है, तो मैं 2 चीज़ों को अगर मैं हेडर फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा तो उससे मेरा एक प्रोफाइल आइटम जो है, क्योंकि 2 आइटम इसके पास है, चिल्ड्रन इसके पास 2 है, कौन कौन सा है, एक तो इसके पास, हाँ जी सर एक बार फिर से बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा हेडर है इसके पास 2 आइटम्स हैं, जो मेरा हेडर डिव है इसके पास 2 आइटम्स हैं, एक तो इसमें प्रोफाइल है और एक 3 डॉट्स वाला इमेज है ना, SVG, ये SVG है, ये 3 डॉट्स ला रहा है। इसको अगर मोटा करना है तो यहाँ पे इसका विड्थ एंड हाइट इंक्रीज कर दो। अच्छा, एक तो इसमें देखो ना, ये जो है ना हेडर है ना यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, एक तो इसमें ये प्रोफाइल आ रहा है, ये प्रोफाइल एक आइटम है, एक एलिमेंट तो ये प्रोफाइल है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट इसमें ये इमेज है, ठीक है। तो 2 ही चीज़ में, एक तो प्रोफाइल है, इसमें एक प्रोफाइल है और एक इमेज है। यानी कि अगर मैं हेडर को बनाऊंगा फ्लेक्स बॉक्स तो ये 2 बंदे आपस में यहाँ से यहाँ आ सकते हैं ना, फिर मैं इनको स्पेस दूर करने के लिए स्पेस इन बिटवीन वगैरह कर सकता हूँ ताकि वो दूर आए। लेकिन प्रोफाइल के अंदर बैठा है प्रोफाइल पिक्चर और ये 2 आइटम्स। तो अगर यानी कि मैं जो मेरा हेडर है, अच्छा इसको एरो पर करो, अगर मेरा हेडर, अब अगर मैं हेडर पे काम करूँगा, ठीक है, अगर मैं हेडर पे करूँगा डॉट हेडर, अगर मैं इसका डिस्प्ले बनाऊँगा फ्लेक्स, इसका डिस्प्ले क्या बनाऊँगा, अभी अगर आप देखोगे जो मेरी पिक्चर है वो 3 डॉट्स यहाँ आ रही हैं, क्योंकि ये पिक्चर, ठीक है ना, एक तो ये पिक्चर और इसके साथ ये 2 आइटम्स ये प्रोफाइल में आते हैं, है ना, ये दोनों आइटम्स एक डिव के अंदर है, ये 2
दो चीज़ें एक डिव के अंदर है और ये एक प्रोफाइल पिक्चर है, और ये तीनों चीज़ें जो हैं प्रोफाइल में आते हैं और ये वाला अलग से आता है। यानी कि अगर मैं हेडर को, ये जो हेडर का बॉक्स है, अगर मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा तो उससे ये 3 डॉट्स यहाँ से आ जाएंगे, लेकिन ये 3 ऐसे ही आ जाएंगे क्योंकि ये एक आइटम है। क्योंकि हेडर के पास, फिर से बताता हूँ मैं, जो मेरा हेडर है उसके पास 2 आइटम्स है, एक तो प्रोफाइल है और एसवीजी इमेज है, ठीक है। यानी कि अगर मैं हेडर को फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा वो प्रोफाइल को ऐसे रखेगा, एसवीजी को यहाँ लाएगा क्योंकि रोज में करेगा ना इनको कन्वर्ट, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स इसको रो में कन्वर्ट करेगा। लेकिन जो मेरा ये वाला आइटम है इसमें एक प्रोफाइल पिक्चर है और वो 2 नाम वो ऐसे ही आएंगे जैसे हैं। उसका मतलब है मुझे इसको भी, इस बॉक्स को भी, जो प्रोफाइल बॉक्स को भी फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि फिर वो साइड साइड आ जाए। समझ में आ गई? सो अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपको फ्लेक्स बॉक्स अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स बता रहा हूँ, ठीक है, डिस्प्ले को क्या बना रहा हूँ, फ्लेक्स, तो अचानक से आप देखो ये जो 3 डॉट्स हैं वो साइड में आ गए, नीचे से आ गए ऊपर, क्योंकि ये जो हेडर है इसके पास 2 ही आइटम्स थे, एक तो प्रोफाइल, उसमें ये तीनों चीज़ें हैं, और दूसरा आइटम है एसवीजी। तो एसवीजी ये 2 आइटम्स हैं, तो इसने 2 आइटम्स को साइड साइड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना आपस में दूर रहे, क्या रहे, तो कैसे कहूँगा मैं, अगर वो दूर रहे, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एंड पे आ जाए। कंटेंट स्पेस, वेरी गुड, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस, स्पेस अराउंड करूँगा तो पीछे से भी स्पेस आ जाएगी, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करूँगा तो ये बिल्कुल डॉट्स अब आगे बाहर, ये वाला, क्योंकि इसके पास 2 ही आइटम्स थे हेडर के पास। देखो हेडर को आप बॉर्डर दे दो, पहले आपको समझ जाएगा, हेडर को आप बॉर्डर दे दो, फिर वो हटाएंगे इसको, बॉर्डर दे दो इसको 1 पिक्सल, क्या हो गया, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। देखो ये जो रेड है ये आपका बॉर्डर है ना, ये हेडर है आपका, ठीक है। हेडर में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका ये है, ये कौन है, ये है प्रोफाइल जिसमें ये 3 चीज़ें हैं, और एक था एसवीजी इमेज, तो इसलिए वो बाहर गया। उसमें एसवीजी को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा साइज़, ये बड़ा छोटा दिख रहा है मुझे, इसको रखेंगे 22 विड्थ और 22 हाइट, फिर देखेंगे एडजस्ट होगा, ठीक है, थोड़ा मोटा हो जाएगा, हो गया, ओके, ठीक है। तो मेरी पिक्चर तो ज़बरदस्त आ गई अभी। एनीवेज, अब ये तो हो गया, लेकिन आपको तो वो भी साइड में करना है ना। मैं चाहता हूँ ना कि ये जो नेम और ये यहाँ पे आ जाए, है ना, और इसको गोल हो जाए, ये पूरा गोल हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ जी, प्रोफाइल को बी डॉट सी एस एस, पहले हम पकड़ेंगे किसको, प्रोफाइल को, डॉट प्रोफाइल में क्या करेंगे, PROFILE डॉट प्रोफाइल में क्या करेंगे भाई साहब, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, डिस्प्ले, क्योंकि वरना वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे ना, ब्लॉक एलिमेंट्स थे, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले, अबे यार की मसला है तुसी, डिस्प्ले फ्लेक्स, जो ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स के पहले ये नीचे आ रहा था, अब डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये साइड में आ गए, क्योंकि प्रोफाइल में ये दो बंदे हैं, एक तो पिक्चर है और ये वाला नेम वगैरह है ना। डिस्प्ले फ्लेक्स किया, और बताओ क्या करेंगे, साथ साथ आ रहे हैं, बिल्कुल चिपक रहे हैं। मैं थोड़ा स्पेस करना चाहता हूँ, बताओ स्पेस कैसे करेंगे इनको, जो नाम है ना, नाम और पिक्चर, इसके दरमियान स्पेस आनी चाहिए, तो वो कैसे आएंगे, गैप नहीं होती यार, क्या मर्ज, अबे गैप है ना हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स में, 10 पिक्सल की गैप दे दो तो दूर दूर भागेंगे थोड़े से। अच्छा और मैं चाहता हूँ कि वर्टिकली ये आपस में आ जाए सेंटर में, सो अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है, कि सेंटर में आ गया ना ये इसके, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा इसका इमेज का नाम क्या था, इसका इमेज का नाम यूजर इमेज, हाँ। अब यूज़र इमेज के ऊपर काम करेंगे, पहले बाद में देखते हैं। यूज़र इमेज को क्या बोलेंगे बताओ, हाँ जी, यूज़र इमेज की पहले हाइट कम कर दो 60 पिक्सल कर दो, और इसका बॉर्डर रेडियस क्या बनाना है ताकि गोल दिखे ना, गोल के लिए 50%,
है ना। बॉर्डर 50% करोगे तो गोल दिखेगा, हो गया ना, बन गया गोल जैसा। और इसका ये इसका रेडियस हटाएंगे ये ना, इसका वो किसको दिया था मैंने ये बॉर्डर, हेडर को, है ना। आई डोंट वांट दिस। ओके, अब आ गया बॉर्डर रेडियस इसका, ये गोल आ गया और ये नाम वगैरह आ गया सेंटर में। अच्छा, और क्या करना चाहेंगे आप इसका, यूजर में इसकी बॉक्स शेडो दे दो 5 पिक्सल 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल, और दे दो इसका लाइट ब्लू दे दो। थोड़ा सा इसमें लाइट आ गई पीछे से। जो हमारा हेडर है, हमने कहा इसको जस्टिफाई कंटेंट आप ये करो, और उसमें क्योंकि अगर आप देखोगे ये डॉट यहाँ आ रहे हैं, ये नीचे आ रहा है ना, इनको अगर हम कहेंगे अलाइन, हेडर को अगर हम कहेंगे अलाइन आइटम्स, सेंटर, तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़े से आगे सेम स्पेस में आ गया ना। अब अभी थोड़ा सा इसमें पिक्चर इसमें इसकी ऊपर आ रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मेरे ख्याल से मार्जिन देंगे, टॉप मार्जिन टॉप देंगे इसको, मार्जिन टॉप दे सकते हैं इसको, यूज़र इमेज को मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे दो, ताकि ये भागेगा, नहीं भाग रहा है, भाग क्यों नहीं रहा। किसको दिया मैंने ये यूज़र इमेज को, उसको नहीं देना, ये यूजर इमेज तो हमारी वो प्रोफाइल पिक्चर है। वो यूज़र इमेज या कार्ड इमेज थी वो, है ना, कार्ड इमेज थी, कोई और थी। यूजर इमेज को बॉटम ये ना मार्जिन बॉटम ये दे सकते 20 हैं है, ना। मैंने 20 मैंने 20 कर दिया था, ये 20 लिखना था। ये है ना हमारा पिक्चर, ये कार्ड इमेज, इसको मैंने मार्जिन टॉप दे दिया ताकि नीचे जाए। अब मैंने 20 के बदले 2O लिखा था, इसलिए नहीं कर रहा था काम। हाँ जी, और बताओ क्या करेंगे इसका, यूज़र नेम का आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यूज़र उसका नाम दिया मैंने कुछ नेम वगैरह, बीरेस्टमेंट यूज़र नेम, ये ना नाम वगैरह, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं हम, और इसको ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं हम, वो खुद कर सकते हो आप। और बताओ, ओके, यू कैन एनिमेट इट लिटिल बिट एंड ऑल। अब ये जो है डॉट्स पे काम करेगा वो बात की बात है, ठीक है, ओके। मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी है। एक और चीज़ इसमें है जो हमारा ये है ना, जो हमारा इससे पहले वाला प्रोजेक्ट था, उसको बंद करूँगा, डिस्पोज ऑफ, ये जो वाला हमारा है ना, जो इससे पहले बनाया था हमने, ये इसमें एक चीज़ भी हम याद रखें, जब हम फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं, फिर जब हम इसको छोटा करेंगे तो देखिए ये खुद ही रिस्पॉन्सिव बनता है, ये भी एक चीज़ है। लेकिन इसमें अब देखो ये गैप यहाँ से आ रही है ना, साइड वाली गैप, तो इसको अगर मैं हटाना चाहूँगा, ये मेरा आइडिया दिमाग में अभी आया था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कहेंगे, लेकिन वो चाइल्ड के ऊपर है, यानी कि पेरेंट कौन है इसका, कंटेनर, कार्ड है, कार्ड हमारा पेरेंट इसका कार्ड है, इमेज का, है ना, जो कार्ड इमेज है यानी कि चाइल्ड वो है। अगर मैं इसे कहूँगा फ्लेक्स ग्रो इक्वल्स टू 1, तो नाउ यू सी इट विल इट शुड, मैंने कुछ गड़बड़ किया, किस में लगाना है हमें, ये फ्लेक्स ग्रो इज इक्वल टू 1 लगाऊंगा मैं, ये किसके ऊपर लगाऊंगा, स्टाइल डॉट CSS, हाँ ठीक। मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, कार्ड इमेज है ना हमारे पास, ये somehow it didn't work but it should work, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये ग्रो करे, यानी कि जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करे। लेकिन जो ग्रो होती है वो किसकी होती है, जो ग्रो होती है वो हमारा होता है चाइल्ड का प्रॉपर्टी, है ना, सो दैट्स अ चाइल्ड्स प्रॉपर्टी। चाइल्ड प्रॉपर्टी में फ्लेक्स ग्रो अगर मैं कराऊंगा उसको, लेकिन से काम ही नहीं किया, मुझे किसको करना चाहिए फ्लेक्स ग्रो, कार्ड को करना चाहिए, चाइल्ड फ्लेक्स बॉक्स कौन है हमारा इसमें, एक सर सेकंड, कार्ड को करना है, फ्लेक्स बॉक्स कुछ है, फ्लेक्स बॉक्स में चाइल्ड चॉइस करो, हाँ वो फिर कार्ड है, कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स है। ठीक ठीक, कमांड X,
तमिशा चाइल्ड ये कमांड वी, यस यू राइट, क्योंकि हमारा कार्ड फ्लेक्स बॉक्स नहीं है, कंटेनर फ्लेक्स बॉक्स है, उसका चाइल्ड कार्ड है, तो चाइल्ड को करना है। तो अगर हम जब वो करेंगे यहाँ पे, तो कहाँ गया वो ब्राउज़र, तो नाउ इट इज़ सी, इट्स टेकिंग अप द होल ब्राउज़र स्पेस। ठीक है, पहले इस जगह पकड़ता था, अब इसने जगह फुल पकड़ी। ठीक हो गया, ओके। हमारे पास कितना टाइम है, 10:29। वी आर लिटरली टाइम इज़ ओवर, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट without, we will do that in a Monday, but there is a lot of time in between. I would like to get some 10 minutes time for सर हेलो सर। yes सर जो मैं हमने कार्ड्स बनाए ना पहले पहला का प्रोजेक्ट, उसमें मेरे कार्ड्स एक ही रो में आ रहे हैं। आपने फ्लेक्स wrap किया ये ऐसे? यस सर। फ्लेक्स wrap is equal to wrap किया आपने? यस सर वो भी किया। एक ही रो में कैसे आएंगे जब आप wrap कर रहे हो? पता नहीं सर, पूरा कितने- एक ही रो में आ रहे हैं। कितने कार्ड्स हैं? 6-7 कार्ड है। वो यो स्क्यूज हो गए आपस में? नहीं स्क्वीज नहीं हो गए, बस एक ही लाइन में आ गए, एक के ऊपर एक। अब देखो हमने कहीं इसने सर कंटेनर को साथ में कॉपी किया होगा। क्या किया होगा? कंटेनर को साथ में कॉपी किया होगा ये कार्ड के साथ। वेट शायद मैं देखता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं, ये कह रहा ना पहले वाले प्रोजेक्ट में डिस्प्ले फ्लेक्स किया आपने उसका। कंटेनर की देखो ये प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पर दिख रही है स्क्रीन पर। यस सर डिस्प्ले फ्लेक्स है। स्पेलिंग में कहीं उधर उधर होगा मेरे ख्याल से। विड्थ देखो, हाइट उसकी ये है, और उसके बाद एक डिस्प्ले फ्लेक्स हमने किया, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखा हमने। सर मैं चेक करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। हाँ, अगली इनमें सेंड शायद विड्थ वीएच रखी होगी। हाइट और विड्थ बड़ी कर दो, और इसमें मेन चीज़ इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स होना चाहिए, और इसका फ्लेक्स wrap होना चाहिए, तब जाके वो दूसरी लाइन में आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर wrap नहीं होगा तो आपका कहीं से कोलन मिस होगा, कहीं पे कुछ होगा, आपने किया होगा। हम सो अब आप एक काम करें, आप फाइल करें फिलहाल, ठीक है? आप उसको बाद में देखना, देन यू विल डू वन थिंग। जिसको कहीं भी कोड में इशू आ जाता है ना, वो मुझे फ़ोन करके ही कैन गूगल मीट एंड सेंड स्क्रीन शेयर विद मी, फिर मैं उसको वो ट्रबल शूट करूँगा। अच्छा, न्यू फाइल बनाओ यहाँ पे, न्यू ओपन फोल्डर ही करो, न्यू ओपन फोल्डर and call it new folder, create new folder and call it day 45, call it portfolio. Okay, say open it. We'll get 10 to 15 minutes to it, and we will continue this thing later on. अच्छा, पोर्टफोलियो में आप क्या करोगे काम, पहले आप बनाओगे index.html, और आप बनाओगे यहाँ पे style.css। ठीक है, जो index.html है यहाँ पे आप एमेट को इस्तेमाल करोगे, एंड यहाँ डॉक्यूमेंट के बदले पोर्टफोलियो लिखोगे। ओके, लिखा आपने? हो गया? पहला काम जो हम यहाँ पे करेंगे, पहले लिंक करेंगे अपना CSS, लिंक कोलन CSS, और style.css ऑलरेडी है ही हमारे पास। नाउ हम पहला काम जो है ना, एक आउटर एक रैपर क्लास बनाएंगे हम, से डॉट रैपर। ठीक है, क्योंकि जो भी हम लिखेंगे इस रैपर क्लास के अंदर लिखेंगे, और बिकॉज दिस विल बी समथिंग वी कैन यूज इट एज आउटर क्लास। नाउ जैसे एक हमारी सिस्टर बोल रही थी कि वी शुड हैव द हेडर। ना पोर्टफोलियो में क्या होता है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। पोर्टफोलियो जो हमारा होता है उसमें हर एक चीज़ होती है, इट हैज़ मल्टीपल थिंग्स, राइट। हमारा वन नोट कहाँ गया, यहाँ पर है, 1 सेकेंड। जो पोर्टफोलियो हमारा होता है, इट हैज़ टन्स ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज़ इट शुड हैव अ ब्यूटीफुल हेडर, एंड हेडर की बहुत सारी चीज़ें हैं। वो शुड हैव यूज़, हमने ग्लास मॉर्फिज्म पढ़ा तो हम ग्लास फॉर्मिज्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमने एनिमेशंस पढ़े तो हम इसमें एनिमेशंस लगाएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, वो सब जैसे हमने सूडो एलिमेंट्स पढ़े, हमने सूडो क्लासेस पढ़े एंड सूडो एलिमेंट्स पढ़े, वो लगाएंगे हम। फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे एक हेडर सेक्शन होगा जिसमें यहाँ पे लोगो होगा, और यहाँ पे हमारे पास एनिमेटेड नैव बार होगा, ठीक है।
So therefore if it is in header, so we should use the header tag. और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मल्टीपल कंटेंट्स हो सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लिक करने से आपको उस सेक्शन पे ले जाएंगी. जैसे यहाँ पे स्किल्स हैं, तो स्किल को क्लिक करने से स्किल सेक्शन पे जाना चाहिए. इसी तरह कॉन्टैक्ट को क्लिक करने से कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना चाहिए. ठीक है ना. तो अगर हम यहाँ पे इसको, कहाँ पे गया मेरा इसको लिया, तो पहला काम जो मेरा होगा यहाँ पे इन अ wrapper class, I need to have one header class, right? So I will have, I say header, header, and I say dot header. In fact इसका नाम भी मैं header रखूँगा और class भी header रखूँगा. हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है, but I will keep the class name with the header. Okay? In fact I will have only just one header, but I need. तो पहला चीज़ जो मैं इसमें करूँगा header के अंदर, I will have one anchor tag with class logo. So I will say a tag dot logo, a dot logo. So it will create me an anchor tag with the logo. And I'm not going anywhere right now, so I put a hash there, and I write here logo. Simply I write here, I want to write something here. So, okay, maybe I write my name here. Okay, I write for example Dr. Junaid Iqbal. But it should have the drop caps, like D should be bigger, J should be bigger, I should be bigger, like that, or simply D should be much bigger than the others. That's called drop cap जो हमने पढ़ा था. तो वो drop cap हम लगाएंगे इसको. ठीक है. So therefore I call this, I will create its class as, मैंने इसका नाम क्या रखा, logo, but I should okay, I will use a logo, anchor tag, class logo. Okay, and I will have the Dr. Junaid, but I will put this into the some span tag maybe, and then I will call it as a drop cap. For example, if I want to have a span tag here, and I will write the D in it, and I call the span as, say for example, with the class name as drop cap. That means I want to make it bigger. This D should be much bigger. So यहाँ पे R रहेगा खाली. Okay. Okay, write this thing. Okay, then I may use it for J also, for I also, and right now I'm using it for D only. Later on the Monday we'll use it for J also and I also and other things also. Okay, now here in the header I will also have one navbar, right? Okay, and the navbar should have, what we have in a navbar, I have, last time we made the navbar, in that we created the unordered list. In our unordered list I created the 5 anchor tags actually. You remember that? So I want to do that in shortcut. That means I want to have the nav bar, which is the nav, because I have, for the nav I have the nav tag, and then in this I have the unordered list where I have allies. In allies we have anchor tags which will act as my those navigations, li, like for example whatever I have. I want to create all this thing in one line in this. So what shall I write here? So I want what? I want a nav tag. In nav tag I will create a nav tag with the class name navbar. So if it's a class name I say dot navbar. So it will create, if I write only this much and I say enter, it will create me a nav tag with the class navbar. But I don't want this much only, I want everything to be created. So I say nav, then I say dot, and I say navbar. Okay, and अब यहाँ तो ठीक है. लेकिन navbar के अंदर मुझे क्या चाहिए? Navbar के अंदर मुझे चाहिए unordered list, which is the descendant, which is the direct child of the navbar. So what we use for the direct child? We use the greater than sign, and I am saying there is the unordered list. In unordered list I have, who are there? There are the allies. Allies are the childs of UL. So I will say in it greater than sign, create me the ally. But how many allies? I want 5 allies, 5 allies in it. If I just give it a go right now, so it will create a navbar with the class navbar and then create an unordered list where I have 5 allies. But I don't want only this much, I want everything here. Nav bar, then dot navbar. That means it will create me a navigation tag with the class name navbar. Then in it I have a child called unordered list. In it I will have a child like allies,
and that too into 5. That means I will have 5 such children. Okay, and then in those children's I want to have each children have anchor tag in it. So I will say anchor tag, and in anchor tag I want to have some content like about. All those anchor tags will have an about text. Okay, and now if I give it a go, it will create wonderfully me the navbar with class navbar. In that was a child ul. Okay, and in that there was the li tag. In fact, I should write here, I said in a comment so that you remember. Control / I said navbar, then I said dot navbar, and then I said what, there's a child ul, then there is a child li, that too 5 times, then there is a child anchor tag, and the anchor tag has a content of about. See, I wrote it this way. So it said we have a navbar, it's a navbar with a class, with the class of navbar. So it created the class navbar. Then in that we have a child ul, so ul is the child of the navbar, and in the ul there's a child li 5 times, so 5 li's got into place, and each of the li will have a child of anchor tag, which is a child of anchor tag. Okay, and is having, everything is having about in it, right? Now I say I click here, then I press option in the Mac and alt in the Windows, and go here and go here and put up hash. It will put hash everywhere. Now I have about, I don't have about already, maybe I have firstly the home, then I have about, and then I have the maybe skills. Now what else you will have in the portfolio? Maybe the projects, what projects you have worked so far. Okay, and the most important thing, the contact. You want to contact me, you want to hire me, you can hire me if you send, because when you create your portfolio, you actually send your portfolio link to the company, and they will see all those things there. If they want to hire you, they should be able to download your resume from this site also. Remember that thing. So, and they should be able to contact you and all. So this is what you will show to the company, that I have these things and what my skills are. So this portfolio is not only going to be just a simple site and just practice of what we have done from 2 months, but also your stuff, who you are, to tell the people. So put everything what you have in this portfolio, right? So right now it won't be fancy, it will be really nothing. It's just having here the name, and then some anchor, then these links. Okay, so we need to actually, where from this coming? Okay, now in style, let's put up some style here, because we don't have time right now. It's literally time is over, just so that you will be keen for the next class. That's why I'm doing this thing, right? Now what shall I do in the style? Can anybody tell me? Normalization, margin 0. I'm repeating, you have to put everything what you got right now into this site and make it super beautiful. I may not make it super beautiful, but you got to make it super beautiful. Okay, box sizing, border box. Okay, maybe font family also. Font family, maybe I need to download from the Google APIs. We have they're the fonts, but right now just it will work for me like a Poppins. Okay, and sans serif, Poppins comma sans serif. I will teach you how to get the fonts. I have actually taught you once, but I will repeat that. Anyways, body, I don't want body right now, anything. Maybe wrapper, I just get the wrapper in dot wrapper. I make its display flex. Okay, justify content center. What else you want to do? Align items. Align items center. I want everything to be line center, whether it is top, bottom, or spelling error. It's okay. Okay. Align items center. Okay. Then there is a height and all.
maybe I will have a background of kind of maybe firstly I will say minimum height. Do ask me what do you mean minimum height and all, but last time I explained this actually. Right now I write it because I just want to write a little bit and wind it up for today. I'm getting little background. Maybe I will say linear gradient, linear linear gradient. Okay, then I will use maybe minus 110 degree. We had done these things, so you should be, it is not a, it shouldn't be Greek for you. You should be knowing that. Maybe I got a hot pink. Okay, and let it be here. Then I got maybe red, and I get it here, and maybe then the blue. I'll use a lot of colors and maybe animations also. I say blue, let it be blue here. Okay, and then I want it to be green. Okay, not that greenish, but this much. And lastly I want a pure red. Okay, let it be red. So I got a lot of stuff here. Command S to save it. It gets me properly. So it's a background is a linear gradient. Okay, and maybe background size, you want to give also background size, background size, give it some 400% and comma 400%. Okay, later on I will explain a lot of things about it, but I want it to animate. I want it to animate. So for animate, I want what I will use? Tell me quickly. Animation. Animation. Okay, animation. Yeah, what should be there after animation? Animation name. Animation name. Animation name. Maybe I call it maybe I call it color show. Okay, and get it be 5 seconds. Let it be 5 seconds, and let it be ease and infinite. Okay, and then I will have animation के लिए क्या होना चाहिए? Keyframe. At the rate keyframe. At the rate of keyframes, and I gotta say color show, the same name. Everybody should tell me, na? Neend aa gayi kya? It's fun. You should not sleep in this class. It's a beautiful class. This is about who you are right now. So I say background position. I say background. I change the position actually, and I'll show you the magic of it. Background position, get it 0%, then 50%. Okay. The stuff I will 50% on a 50%. I can say again the background position. Background position. So 050 किया मैंने, फिर मैं 100 पढ़ूंगा 100%. Okay, अब मैं वापस 50 पे आ जाऊंगा 50%. ये 50% of time हो गया, फिर 100% of time, 100% of time. And what I do is background color, background position, sorry, and I go from 0% again, and I go to back to 50%. They're changing with the positions and all, right? So it's the gradient is not stuck on a one place, rather the gradient is moving, but rather it should be a little slower. Maybe I got some 8 seconds something. Now it's still moving a little faster, but it shouldn't move. But when the content is up, it will look pretty. Now you see gradient on the background, it's moving nicely. Now I want to have a header, and I want to pan out these everything on the top in a glass morphism form. Okay, it will look pretty then. Right now it's not, these text is coming up here, it has to be here in a beautiful manner, and these home about, and this has to be here. Then later on we have to make it reflexive also, and we want to have some animations on this menu and all. Right now I put up the animation on the background, whereas my gradient is moving. It's not constant gradient,
it's moving. So this is the application of animation we have done, right? And that's all for today because it's getting too late now. Okay, coming back to you guys. You done with this? Yes, sir. So what I repeat, this portfolio should be something which is, you should put everything in it, right? Make it beautiful. So because this is what you tell people that who you are, right? It's the beginning of the projects. It will, later on when you may make it in a React, then it will be much better. But right now, whatever we have learned from 2 months, you should apply every damn thing on it. Okay, see you guys on Monday. Until then, ma salam.